آپ سب میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ان تمام افراد کی شخصیت ایک دوسرے سے مختلف ہے. آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا، جیسے کہ ہر سائیکالوجسٹ کا فرض ہے کہ وہ غور کرے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر کسی ایک شخص کی پرسنالٹی ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتی. کیا؟ ہیریڈیٹی. گڈ. ہیریڈیٹی پہلا فیکٹر ہوا ہیریڈیٹی، یعنی کہ وراثت. وراثت. اور کوئی فیکٹر؟ بھئی کم آن، کوئی اور فیکٹر؟ کم آن. عائشہ تم بتاؤ. بھئی دیکھو، یہ مونگ پھلی وغیرہ نہیں چلے گی کلاس میں. بچوں میں خوب سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ٹائمز میں آپ لوگ جلدی بور ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے بور ہو جاتے ہیں، لیکن پلیز آج آپ میرے ساتھ ایک بہت باریک مسئلہ طے کریں. پلیز. انوائرمنٹ. کیا؟ انوائرمنٹ. گڈ. انوائرمنٹ. یہ آ گیا. یعنی ماحول. ماحول. ٹھیک، بہت ٹھیک. تمام سائیکالوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ وراثت اور ماحول سے پرسنالٹی بنتی ہے. لیکن آج میں ایک اور فیکٹر کی نشاندہی کروں گا، اور وہ فیکٹر ہے محبت، یعنی لو. محبت. آج میں ماحول اور وراثت سے ہٹ کر جس تیسری قوت کی بات کر رہا ہوں، میرے تمام اسٹوڈنٹس پلیز اسے اسٹڈی کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کہاں تک درست ہوں. میری تھیوری ہے کہ انسان کی پرسنالٹی پر سب سے زیادہ وہ محبتیں اثر انداز ہوتی ہیں جو وہ خود کرتا ہے. جو محبت ہم سے کی جاتی ہے وہ نہ ہمارے قلب کی ماہیت کو بدلتی ہے، نہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن جب ہم خوش ہو سکتے ہیں، غم کی اتھاہ گہرائیوں کو چھو سکتے ہیں، دمادم صدائے کن فیکون کی دھڑکن کے ساتھ ہم میں ہزاروں وولٹ کی بجلی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہی وہ محبت ہے جو ہم میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، ہماری پرسنالٹی کا رخ، رنگ، وضع اور جسامت معین کرتی ہے. جب ایک نوجوان یکدم فرسٹ آنے لگتا ہے، حالانکہ کئی سال پہلے وہ باقاعدگی سے فیل ہوتا رہا ہے، جب کوئی بد شکل لڑکی اچانک جاذب نظر ہو جاتی ہے، یا جب کوئی اپاہج اپنے زور پر چلنے لگتا ہے، تو غور سے اسٹڈی کریں پلیز. اس شخص کی تبدیلی کی ذمہ داری ہیریڈیٹی پر نہیں ہے، ماحول پر نہیں ہے، اس کی محبت پر ہے جو اس کے دل میں پھوٹتی ہے اور اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. میں اپنی زندگی کی مثال دے کے تمہیں بتاتا ہوں. ہاں بالکل، بڑی وضاحت سے بتاؤں گا. میں بہت بدتمیز، گستاخ اور دل شکن ہوا کرتا تھا. مینڈکوں کو بوتلوں میں بند کر کے اوپر سے میں تیزاب ڈال دیتا. زندہ تتلیوں میں کامن پنیں گاڑ کر ان کا البم بناتا. سوئے ہوئے آدمیوں کے ہونٹوں پر مرچیں برور دیا کرتا تھا. لیکن پھر میری پرسنالٹی تبدیل ہو گئی.
क्या कर रही है जमीला? मोमबत्तियां जला रही हूँ। किसी की सालगिरह है क्या? आज शब बारात है, आपको इतना भी मालूम नहीं? हाँ मालूम तो है शायद, लेकिन कोठे पर तो हवा चल रही है। हवा का क्या है, वो तो हर वक्त चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, मोमबत्तियां बुझाती रहेगी, हम जलाते रहेंगे, चरागां करते रहेंगे। आपको बहुत खुशी है शब बारात की? आपको नहीं है तो सही, लेकिन रस्मी सी। मेरा मतलब है कि क्यों? शायद इसकी वजह मेरी तालीम हो। मैं जिन स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा हूं ना, वहां पर मजहब, तहजीब और पुराने रिश्तेदारों से ताल्लुक रखना फरसूगी और रजत पसंदी की अलामत समझा जाता था। मैं आपकी बात समझी नहीं। बात यह है कि मैं जिन स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा हूं, उन्होंने मुझे मुसलमान रहने नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? इंसान अगर कलमा गो है तो वो रहता ही मुसलमान है, हर हालत में। हाँ, लेकिन जुबानी कलामी। आप हमेशा शब बारात मनाती हैं? जी हमेशा। और हमेशा रोजे रखती हैं? सभी रखते हैं। अगर कोई यूरोपियन आपके घर आके ठहरे तो अभी आप रोजे रखेंगी उसके सामने? क्यों नहीं? फर्ज किया अगर आप लंदन जाती हैं, लंदन, तो वहां भी आप शब बारात मनाएंगी सबके सामने? तो क्या छुपकर? अगर उन्होंने आपको बैकवर्ड समझा, फरसूदा ख्याल किया तो भी? जी। अगर उन्होंने आपको वैशी, जंगली, बदतमीज समझा, पेगन ख्याल किया तो भी? लेकिन क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं? अगर तालीम याफ्ता मगरबी लोगों ने इस बिना पर आपसे नफरत की, आपका तमस्खुर उड़ाया, आपको कमतर समझा, तो करते रहे नफरत। मैं उनकी खातिर अपना ईमान तो नहीं छोड़ सकती। कन्विक्शन हो तो आदमी किस कदर सुखी रहता है, अपनों के साथ, बेगानों के साथ, खुद अपने साथ। क्या हो तो सुखी रहता है? कुछ नहीं। लाइए माचिस दीजिए, लाइए। मैं आग लगाने में बड़ा माहिर हूं। कई बार आपने देखा होगा कि पर्सनालिटी क्लैश होता है, शख्सियत में टकराव, तजाद। जो पर्सनालिटी ज्यादा कन्विक्शन की मालिक होती है वो गालिब आ जाती है। यहां मैं एक और बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि औरतों में गो बाहर का खोल बहुत कमजोर होता है, लेकिन अंदर से उन्हें तब्दील करना मुश्किल है। इसके बरक्स मर्द का खोल सख्त है, लेकिन उसके अंदर का गूदा नरम होता है और जल्द असर पजीर होता है। बारकैफ जो पार्टी भी मात खाती है, उसके अंदर टीयरिंग यानी इक्तसाब का ऐसा अमल जारी हो जाता है जो हर किस्म की रीइंफोर्समेंट से तेज होता है और बड़ी तेजी से पर्सनैलिटी को बदलने में मदद देता है। मैंने कुछ सुना है जमीला। क्या? कि आप जा रही? जी, अब्बा जी का तार आया है। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ इम्तियाज भाई, 3 महीने तो हो गए हैं। आप यूं करें कि आप अपनी अम्मी को जाने दें और खुद यहाँ रहे चंद दिन और। भाई ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन तो हो सकता है अगर आप चाहें। आप ऐसे क्यों खड़े हैं, बैठिए ना। दरअसल मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। क्यों? पहली बार झूठ बोलो, पहली बार चोरी करो, पहली बार। क्या बात है इम्तियाज भाई? अरे आपको तो पसीना आ रहा है। बात दरअसल ये है जमीला कि आपने मुझे खुदा के इस कदर करीब कर दिया है कि अगर आप चली गई तो मुझे लगता है जैसे मैं फिर पहले जैसा हो जाऊंगा। दरअसल खुदा और मजहब में मेरी कन्विक्शन अपनी नहीं है, आपकी वजह से। अल्लाह ना करे। अगर तालीम नामुकम्मल रह जाए और मुर्शिद चला जाए तो मुरीद मुर्तद हो जाता। हाँ, तौबा। जमीला। जी इम्तियाज भाई। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि इजहार मोहब्बत कैसे किया जाता है। इम्तियाज भाई, शायद आप किसी गलतफहमी का शिकार हो गए। क्या? मेरी मंगनी हो चुकी है। मुझे मालूम है। और मुझे आरफ से बड़ी मोहब्बत है, बचपन की मोहब्बत। ठीक है, लेकिन
किसी से मोहब्बत की तो जा सकती है, चाहे वो मोहब्बत एक तरफा ही क्यों ना हो। किसी को अपने साथ मोहब्बत करने पर मजबूर तो नहीं किया जा सकता। इंसान की कितनी बड़ी मजबूरी है ये। आप बोर तो नहीं हुई? आप इस कदर भी शर्मिंदा ना करें इम्तियाज भाई। ठीक है सलमा बेटे, लेकिन किसी इंसान को इल्म कुल नहीं है। मगरिब के साइंसदान भी तलाश में हैं, हम भी तलाश कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी पर किस बात का सबसे गहरा असर होता है। आप हमें इजाजत नहीं देंगी इस तलाश की? क्या? ठीक, हाँ, राइट, लेकिन रुको यहां भाई, यहां तुम गलती कर रहे हो। कई बार महबूब जो है वो अपने गिरदो पेश का हिस्सा नहीं होता। किसी नजरिए की मोहब्बत, सूफी की खुदा से मोहब्बत, इश्तराकी की मार्क्स से मोहब्बत, चलती गाड़ी से बाहर किसी चरवाही की मोहब्बत, घर बैठे रेकुल वेल्च की मोहब्बत, खुदा, नजरिया, नायाफ्ता महबूब, ये सब चीजें जो हैं ये माहौल की नहीं है। दूर बैठे ची गुवेरा से मोहब्बत होगी तो यहां के इंसान की पर्सनालिटी तो जरूर तब्दील होगी। हालांकि ची गुवेरा जो है वो इस माहौल का हिस्सा नहीं है। भाई उसे इस माहौल में मत बांधो, इस सख्ती से ना बांधो बेटे। क्या भाई, दो बारी बारी एक एक करके। हाँ, यस, बिल्कुल। मेरी थ्योरी यही है कि जो मोहब्बत हमसे की जाती है वो हमारी अना को बूस्ट करती है, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज नहीं होती। सिर्फ वो मोहब्बत हमें तोड़ती मरोड़ती है जो हम टूट कर किसी से करते हैं। देखिए भाई, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप जा सकते हैं प्लीज। हाँ, लेकिन आपको क्लासरूम में सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है। नहीं, नो, यस, थैंक यू। आपको अपनी मां से मोहब्बत होती है तो आप में नुमाया फर्क पैदा होता है। आप इताअत गुजार होते हैं, अच्छे नेक बनते हैं, दूसरों के काम आते हैं। लेकिन जब आपकी मां आपसे मोहब्बत करती है तो रद्द अमल दूसरा होता है। आप तब्दील नहीं होते, आपकी मां बदल जाती है। उसकी मोहब्बत और शफकत के समंदर में तूफान आते रहते हैं और जिससे तुम्हारे जैसे कई बच्चे ठंडक हासिल करते हैं। नहीं भाई, जमीला मेरा माहौल नहीं थी। सिलेक्शन की वजह से मैंने उसे अपने माहौल से चुन लिया था। तो मेरे बेटे, ये जरूरी नहीं कि महबूब जो है वो आपके माहौल से मुतल्लिक हो। अच्छा, मैं अपनी ही लाइफ से आप लोगों को एक और मिसाल देता हूं। क्या तालिब इल्म तबका जो किसी शहरी आबादी का सबसे ज्यादा ज़हीन तबका होता है, अपने सामने मुल्की मैशत, सालमियत, सियासत को चौपट होता देखे और चुप रहे, घर लुटता देखे और खामोश रहे? सदर ग्रामी कद, क्या तालिब इल्म के अंदर दिल नहीं होता? उसकी शरियानों में खून नहीं होता? क्या वो महसूस नहीं करता? सदर ग्रामी से सियासत से अलहदा रखा जा रहा है ताकि वो किसी इनकलाब का पेश खेमा न बन जाए, ताकि वो तरक्की की राह पर गामजन न हो जाए, ताकि वो अपने हमवतनों को बेदार न कर दे। मैं तो सदर ग्रामी कद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से सिर्फ इतना कहूंगी कि शाह परस्ती और बादशाह परस्ती छोड़ दो। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आजकल क्लब में वो तो स्विट्जरलैंड गए हुए अंकल। कब? ने तो 20 दिन हो गए, मम्मी भी साथ गई। आए तो मेरे सलाम कह देना। यू डिड वेरी वेल। थैंक यू। ये थी मिस लुबना। अब हिज़्ब मुखालिफ की जानिब से इम्तियाज अहमद करारदाद की मुखालफत में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पीकरों को बोलने का मौका दिया जाए। जनाब सदर, जनाब सदर,
مہمانان گرامی، بہنوں اور بھائیوں، قائد اعوان اور ان کے ہم خیالوں نے جس شدت سے تنگ نظری اور شاملیت کا مظاہرہ کیا ہے، میں اس طریق کو اپنانا نہیں چاہتا. تعلیم اور سیاست دو الگ میدان ہیں. تعلیم اور سیاست دو الگ میدان ہیں. جیسے کھلاڑی کھیل میں بہت دور نکل جاتا ہے اور پڑھائی سے کٹ جاتا ہے، پڑھائی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہتا، وہ طالب علم رہتا ہی نہیں ہے بلکہ کھلاڑی ہی رہ جاتا ہے. آپ میری بات سنیں، میری باتیں آپ کو قائل کر لے گی. صدر گرامی، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. مجھے اس روز بہت برا لگا. لڑکوں نے آپ کو فیئر چانس ہی نہیں دیا بولنے کا. کوئی بات نہیں مس، زندگی میں کئی بار فیئر چانس نہیں ملتا. میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. کیوں؟ لائف تو اسی کی بنتی ہے جھگڑا کرنا جانتا ہوں. زندگی بنانے کے کوئی سیٹ قاعدے کو لیے نہیں ہے مس لبنہ. اسٹرگل تو ضروری ہے نا امتیاز صاحب. اسٹرگل کے بغیر تو نہ انسان آگے بڑھتا ہے اور نہ قومیں آگے بڑھتی ہیں. اسٹرگل کس سمت میں اسٹرگل؟ اگر کوئی شخص پیانو کے اوپر نوٹس جو ہیں وہ بڑی اسٹرگل کے بعد غلط بجانا سیکھ لیتا تو پھر وہ ساری عمر درست نوٹ نہیں بجا سکتا. آپ نے تو پڑھا ہوگا سائیکالوجی میں. یہ تو آپ غلط اگزامپل دے رہے ہیں. میں آپ مائنڈ نہ کریں، یہ تو ٹھیک ہے آپ اسٹڈیز میں فرسٹ آتے ہیں، لیکن آپ کے جنرل آئیڈیاز بہت پیچھے ہیں. میرے ڈیڈی کہتے ہیں اسٹوڈنٹ باڈی کو کوئی گائیڈ نہیں ملتا، ورنہ وہ کیا شعر ہے، اگر نہ ہو تو یہ مٹی. آپ کے ڈیڈی مجھے گائیڈ کریں گے؟ آئی خوشی سے. آپ آئیں نا ہمارے یہاں پلیز. ڈیڈی تو خود اسٹوڈنٹس کی تلاش میں رہتے ہیں. آپ کو ٹرافی مبارک ہو. تھینک یو. جی میں سمجھ رہا ہوں. ہاں بیٹے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری پبلک اور ہمارے عوام ان پڑھ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے. بیرونی ممالک کا پریشر زیادہ ہے اور 50% لوگ دیہات میں رہتے ہیں. بیٹے، نہ صرف وہ معاشی طور پر پسماندہ ہیں بلکہ ان میں سیاسی سوچ بوجھ بھی نہیں ہے. ایک اکیلا سیاستدان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارا ہاتھ کون بٹائے گا ہمارا ہاتھ؟ اگر طالب علم بھی اپنی اسکن بچاتے رہے تو اس قوم کا کیا بنے گا اس قوم؟ سر، طالب علم تو اپنی اسکن نہیں بچاتا غالباً. آپ ڈیڈی کی بات سنیں، ان کے دلائل آپ کو قائل کر لیں گے. دراصل میری اسپیچ بھی ڈیڈی نے لکھی تھی. بیوروکریٹ مدد کرے گا ہماری. تجارت پیشہ جان لڑائے گا قوم کی خاطر. بیٹے، عوام تو بیچارے ان پڑھ ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا نوکری پیشہ سے امید رکھتے ہو؟ لمبا کام ہے اور منزل دور ہے اور سیاستدان اکیلا ہے. بیٹے، اگر طالب علم بھی اپنی صرف تعلیم کی طرف توجہ دینے لگا تو پھر اللہ بیٹے ختم. قربانیاں دینی پڑتی ہیں بیٹے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کیا تم مجھے بتاؤ، کیا ہم لوگ اپنی رات کی نیند حرام نہیں کرتے، جیل نہیں جاتے، مصیبتیں نہیں جھیلتے؟ جواب دو بیٹے، جواب دو. ڈیڈی آپ امتیاز کا وہ واقعہ بتائیں نا جو سوئٹزرلینڈ کے گھڑی ساز نے آپ کو بتایا تھا. لبنہ، ڈیڈی کو بات کرنے دو بچے. اچھا یاد دلایا. بیٹے، میں ایک دفعہ لیک لیمو کے سامنے سیر کر رہا تھا کہ ایک بوڑھا گھڑی ساز مجھے ملا. میرے قریب آیا اور
पूछने लगा कि स्पीक इंग्लिश। हाउ स्वीट। हाँ, तो वो गड़ीसाद आया, कहने लगा सर हमारे मुल्क का रकबा देखो और यहाँ के बैंक देखो। तो कुछ समझ में आया तुम्हारे नादान? उसका फख्र और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, अच्छी कोशिश है बेटे, लेकिन काफी नहीं है। मीन्स जरूरी नहीं होते, एंड जरूरी होता है। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा डैडी। मुश्किल नहीं है, और खासकर जब जलसे में मेरा फरीक मुखालिफ तकरीर करने आए तो जलसे में गड़बड़ पैदा होनी चाहिए। कोई उसकी तकरीर सुनने ना पाए, वो कुछ कह ही ना सके। एक बल्कि किसी कैफियत हो, बसों के शीशे टूटे, रोड लाइट्स टूट जाए सारी, और चौराहों की बत्तियां टूट जाए, बसों को आग लग जाए, एक अफरा तफरी मच जाए। लेकिन डैडी ये तो बड़ी अनफेयर बात है, दूसरे की बात तो सुननी चाहिए सर। तो तुम चाहते हो कि गलत बातें अवाम के दिमाग में पुख्ता हो जाए? बेटे वो बेचारे सियासत को क्या समझे? क्या तुम एक बच्चे को आग से खेलने दोगे? अगर तुम्हें उसे मार कर भी रोकना पड़े तो क्या ना रोकोगे? बोलो, जवाब दो बेटे। तुम मैकियावेली के दे प्रिंस पढ़ो। सियासत में मीन्स कुछ नहीं है, एंड सब कुछ है, एंड। तुम जिस अखलाकियात के आदी हो वो नहीं चलती बेटे, वो नहीं चलती। अपने मॉरल्स की कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ समझे? जी। और सुनो, जब मेरी तकरीर शुरू हो तो चीयर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और जब दूसरा लीडर तकरीर करने आए तो बम, पटाखे और यू नो बेटर। भाई यंगर जनरेशन तो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम तो आप जैसे ओरिजिनल हो भी नहीं सकते। नहीं बच्चों, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। मुझसे उस खातून को मोहब्बत नहीं थी जिसकी खातिर मैं सियासत के मैदान में उतरा था, और ना ही मैं उसके वालिद को मुतासिर करना चाहता था। यस आयशा, तुम ठीक कहती हो। मोटिव्स को एनालाइज करना इतनी आसान बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं अपने आप को जेन्युइन तौर पर सियासत के लिए वक्फ करना चाहता था, लेकिन मेरी ये कंडीशनिंग लुबना की मोहब्बत ने की थी, वो मोहब्बत जो मैं उसके लिए महसूस करता था। मैं लुबना में रत्ती भर तब्दीली नहीं पैदा कर सका। सर हमें तो अंदर ही नहीं आने देते थे, हमने भी हवालात को आग लगाने की धमकी दी। ओ सदके जाऊं अशके, हमने स्ट्राइक कर दिया सर, सारा कॉलेज बंद हो गया। इंशाल्लाह ताला सब कॉलेज बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी क्लोज हो जाएगी 3 दिन के अंदर अंदर। मरियम, तुम क्यों चली आई? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो आना नहीं चाहती थी, फिर इन सबके डर से आ गई। तुम सब लोगों को अपनी अपनी जगह पे जमे रहना है। कोई मुश्किल पेश आई या कोई प्रॉब्लम हो तो लुबना के फादर से मिल लेना। ठीक है सर। ठीक है, उन्हें मेरा रेफरेंस देना। आपकी रिहाई की कोशिश जारी है सर, सारा प्रेस हमारे साथ है, फिर शहर की सिंपैथीज भी आपके साथ हैं सर। हमने शहर के बड़े बड़े मौजूद लोगों को इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ। ओ सदके जाऊं दलेरिया बजलेरिया, कमाल कर दिया तुमने। अंकल, मेरे नोट्स तो नहीं दे गई आपको लुबना? आपको आंटी? बेटे वो
وہ کچھ ایسی افراتفری میں گئی کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا. یونیورسٹی بند ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں میں نوٹس کس سے لوں گی. تم نئے نوٹس بنا لینا مریم. جی وہ تو میں بنا ہی لوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بھائی تم، ارے ماشاء اللہ مبارک ہو بھائی. آؤ آؤ. کیسے مزاج ہیں؟ بیگم اٹھو بھائی، اٹھو. پلیز ڈیڈی آپ ہی بیٹھیے، پلیز تشریف رکھیں. نہیں نہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنی سی عمر میں جیل بھگت آئے ہو، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. بیٹے اس خوش بختی کو تو میں ابھی تک ترس رہا ہوں. لبنہ یہاں ہوتی تو بہت خوش ہوتی. جی مریم چلو ہاسٹل چھوڑو. ٹھیک ہے، ابھی سانس ٹھیک ہو جائے. یہ تمہیں دمے کا اٹیک ہوا کب تھا؟ 4-5 سال ہو گئے. تم بیمار تھی؟ پتہ نہیں، سردیوں کی آمد تھی کہ سردیاں جا رہی تھی، مجھے نمونیا ہو گیا تھا. پھر میں ٹھیک ہو گئی تھی بالکل، اور بس پھر کالج جایا کرتی تھی. اور راستے پہ ایک لڑکا چڑھا کرتا تھا ریکل کے چوک پر سے. بس پر اسے دیکھ کر میرا سانس رک جاتا خود بخود. تم نے اس سے بات نہیں کی، اس سے ملی نہیں؟ جسے دیکھ کر سانس بند ہو جاتا ہو، اس سے اگر میں بات کرتی تو مرنا چاہتی. اس نے بھی تمہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی؟ نہیں، ویسا لڑکا نہیں تھا. میرا مطلب ہے لفٹیا قسم کا. یہ تمہیں ایستما کا اٹیک ہوا کیسے تھا؟ کھانے میں غفلت ہونے لگی، نیند نہیں آتی تھی رات بھر. نمونیا تو ٹھیک ہو گیا لیکن کئی اور سائیکوسمیٹک سمٹمز ظاہر ہونے لگے رفتہ رفتہ. تو اسے معلوم نہیں ہوا کہ تم بیمار ہو؟ پتہ نہیں، لیکن اگر وہ صرف ایک بار مجھے صحت مند ہو جانے کو کہہ دیتا تو پھر شاید دمے کا اٹیک کبھی نہ ہوتا. اس حد تک؟ پتہ نہیں کس کس آدمی کی آنکھوں میں، باتوں میں، ہاتھوں میں شفا ہوتی. امتیاز یہ بتاؤ، یہ قوت ہم اس شخص کو عطا کرتے ہیں یا یہ قوت اس میں پہلے سے موجود ہوتی؟ اتنا نہ سوچا کرو مریم، پلیز. ابا بہت علاج کراتے ہیں میرا، کبھی ایلوپیتھک، کبھی ہومیوپیتھک، کبھی مزاروں پہ لے جاتے ہیں. پر بہت ترس آتا ہے مجھے. ارے کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میں ان سے محبت نہیں کر سکتی. وہ چاہتی ہے میں جم کر کوئی علاج کراؤں، ہر مجھ سے جم کر. مستقل مزاجی سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. میں تمہیں اپنی پینٹنگ سکھاؤں گی. ضرور. کوئی بھی مکمل نہیں، سب ادھوری. پلیز مریم، 6 مہینے دل لگا کر کسی ڈاکٹر کا علاج کر لو. پتہ نہیں، میرا کسی ڈاکٹر پہ اعتماد ہی نہیں. میرا خیال ہے کسی دن میرا مسیحا آئے گا اور میں
की नजर में शफायाब हो जाऊंगी। इम्तियाज, ये मेरी थ्योरी है कि इस दुनिया में हर शख्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसीहा होता है, सिर्फ वो मिलता नहीं वक्त पर। वो मसीहा जिस्म को रिपेयर कर सकता है, रूह को नए सांचे में डाल सकता है, ज़हन को जला बख्श सकता है। मरियम, अभी तुम फिर खांसने लगोगी। प्लीज मेरे साथ चलो किसी क्लिनिक पर, हैं? मुझे देखते रहो इम्तियाज, मुझे लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं दूसरों की मोहब्बत के असरात को निगेट नहीं कर रहा। दूसरों की मोहब्बत, नफरत, बेरुखी, बेनियाजी, चिड़चिड़ापन सब इंसान पर असरअंदाज होता है। बट अब फिर गौर करो मेरी स्टेटमेंट पर। आई एक्सपेक्ट कि जो बच्चा मां से मोहब्बत करता है वो मां की मर्जी के मुताबिक ढलता है, और जिस बच्चे से मां मोहब्बत करती है वो अमूमन मनमानी करता है, स्पॉइल्ड होता है, लाडला होता है। दिमाग से काम लो भाई, मैं कह रहा हूं अमूमन, माइंड यू, अमूमन। जब किसी शख्स को मोहब्बत मिलती है तो वो फिरौन बनता है। जब वो खुद किसी से मोहब्बत करता है तो इंसान की मेराज और अपने जीन्स की पोटेंशियल की तरफ जाता है। हाँ, अभी बताता हूं बेटे, अभी बताता हूं। हेलो, कमाल है। यानी पहले मैं हॉस्टल गया, वहां से पता चला कि तुम आंटी के यहां गई, फिर आंटी का पता नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से उनका पता हासिल किया। उसके बाद जनाब लेन ना मिले, लेन मिली तो कोठी ना मिले। जनाब पूरे 3 घंटे आपके जिम्मे। कल शाम मुझे सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आंटी की शिफ्ट कर जाओ। क्यों? वो कहती किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ, घर में कोई डॉक्टर वगैरह, मेडिकल एड की जरूरत, या शायद बिलाखिर अस्पताल। कमाल है, यानी वो उल्लू की तुम सुपरिटेंडेंट ज्यादा जानती है। इल्हाम हुआ है उसे कि तुम्हें कितनी जरूरत पड़ेगी। इतना गुस्सा एक हमदर्द इंसान पर। ये सुपरिटेंडेंट लोग अपनी हेडेक कम करती हैं, हमदर्दी वगैरह खाक नहीं होती इनमें। इम्तियाज, ये आर्टिस्ट क्या चीज होती है? कैसे पैदा होता है आर्टिस्ट? अरे मुझे क्या पता, मैं कोई आर्टिस्ट हूँ? कभी कभी बड़े मामूली आदमी बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं। मिस्ट्री कैसे पैदा हो जाता है? सेब काट के दूं? सारी पॉकेट मनी मत जाया क्या करो इन चीजों पर। अरे नहीं, पॉकेट मनी क्या, ये है जनाब की मिक्सचर, इसमें है दिन में 4 बार। इसी में ब्लड की रिपोर्ट है आपकी, और जनाब गोलियां हैं 2 मरतबा आफ्टर मील्स। क्या आर्टिस्ट ज्यादा शदीद आशिक होते हैं, सारी दुनिया उन्हें पूजती है, और वो एक ही बुत के कदमों में ढेर होते रहते हैं। बुत कभी कभी भूल जाता है, लेकिन ढेर होने की कैफियत नहीं बदलती, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्का सा मार ली ना छुरी। तुमसे किसने कहा था सेब काटो? कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें देखकर कि अब मुझे कभी तुम्हें का अटैक नहीं होगा। मैं ठीक हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा।
आंटी को बुलाऊं? हाँ? फैमिली कहीं नहीं गई, फोन ना कर। मेरी तस्वीर मेरे नाम खबर रह जाएगी, है ना? प्लीज मैं टैक्सी लेके आता हूँ, अस्पताल चलते हैं। अभी सांस आने तस्वीरों का राज्य मुझे बस। भाई वहाँ ऑक्सीजन का इंतजाम हो सकेगा? मरियम प्लीज। मत कर। मरियम, मरियम, तुम्हें उस चोर का पता मालूम है? किस चोर? वही जो बस स्टैंड पर आया करता था रीगल के पास। चोर? तुम्हें क्यों? मैं उसको कान से पकड़ के लेके आऊंगा यहाँ। फोन नंबर पता है उसका? तुमने उसे फोन कभी नहीं किया? तुम्हें उसका फोन नंबर मालूम है? क्या है उसका फोन नंबर? नहीं जाओ, रुक जाओ प्लीज। मरियम, 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 यह मिसाल मैंने इसलिए दी कि वो नौजवान जिसके माहौल का मरियम हिस्सा नहीं था, हाँ, हमें साइकोलॉजी का इल्म बना बनाया प्रिंटेड शक्ल में मिलता है। हम खुद अपने मुल्क की जिंदगी को पेश नजर रखकर नहीं सोचते। मैं तुम सबको सोचने की दावत दे रहा हूं। अगर आप किसी को भूखा रखें तो वो कुछ अरसे के बाद मर जाएगा, लेकिन अगर किसी पर सेक्स के दरवाजे बंद हो जाए तो वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। ये ऐसी भूख नहीं है जिसे खामखा बना दिया गया है, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कमयाब हो। इस फिनोमेनन के बारे में सोचो कि जब इंसान मोहब्बत करता है, मोहब्बत में नाकाम होता है, तो वो मर क्यों जाता है? सेक्स के लिए नेमुल बदल है, सब्लिमेशन है, लेकिन मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है। हवा, पानी और भूख की तरह मोहब्बत जानलेवा क्यों है?
محبت کے روگ سے آدمی مر کیوں جاتا ہے؟ صرف محبت میں سیکس کا ذکر نہیں کر رہا. محبت میرے بچوں اس طرح جان لے سکتی ہے جیسے آکسیجن کی کمی. اتنی بڑی قوت پرسنالٹی کو کیسے نہیں تبدیل کرے گی؟ محبت توجہ اور احساس. جانتا ہوں، سارا شہر جانتا. بے غم صاحب تے خانے میں گرم پیک لگی ہوئی ہے، روز رات کو ڈلیوری ہوتی ہے، کسی ٹھیکیدار کو معلوم نہیں. اور یہ کوئی لکونے والی بات ہے؟ آج اس نے پھر اپنا منہ کھولا ہے، اس کا نشہ ہرن کر دو لے جا. میرے بادشاہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے. 600 بیرل ہفتے کی، 600 مال لگا، اٹھیانی میں پا دوں گا، تازہ تازہ فریش فریش ریڈی میڈ، چوندی چوندی ہو. تو میری تو بائی نکال دے گا. کھانا اور تو میں ویسے تیرے ساتھ نپٹوں گا، شگرد تو میرا ہی ہے نا، مجھے سب پتا ہے، نپٹوں گا تیرے ساتھ. اچھا جی اب میں چلتا ہوں. نہیں نہیں بیٹھیے ذرا، مجھے شکریہ تو ادا کر لینے دیجیے. جی اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے جی؟ کیسے نہیں، اگر کسی خلیل کسی پولیس والے کے ہاتھ لگ جاتا تو آج میری کوٹھی پر چھاپا پڑ جانا تھا. جی میں اس خلیل کو پرانا جانتا ہوں جی، 10 سال پہلے سے. اچھا کہاں ملے آپ اس سے؟ جیل میں جی. میں تو ڈر ہی گئی تھی کہیں آپ کوئی پولیس والے نہ ہو. نہیں جی. آئیے ذرا آئیے. ویسے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں کمرشل آرٹسٹ ہوں. ڈریے نہیں جی، یہ سب فورن سٹاف. جی میں دراصل آدھا آرٹسٹ ہوں جی. کمرشل تصویریں بناتا ہوں، شراب نہیں پیتا. سیکھ جائیں گے آپ. کچھ پیش کروں؟ جی نہیں تھینک یو، تھینکس. نہیں نہیں پھر سوچ لیجیے. جی بڑی مہربانی، شکریہ. ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ جی امتیاز، مجھے امتیاز کہتے ہیں. آرٹسٹ ہیں آپ؟ جی جی آرٹسٹ، کمرشل آرٹسٹ.
दरअसल राजदारी जी जी खरीदना पड़ती। जी मैंने कभी इससे दरेग नहीं की। जी मुंह बंद रखने की आप मुंह बोली कीमत ले सकते हैं। जी कीमत, राजदारी, ये सब क्या चक्कर है जी? खलील ने आपको मेरे घर का रास्ता दिखा दिया, वरना यहाँ तो बड़े बड़े नहीं पहुंच सकते। मुझे आप पर तरस आता है, वरना आप यहाँ से जा नहीं सकते। जी लेकिन जी मेरी तो कल आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश है जी तस्वीरों की। जाने देंगे, मगर एक वादे पर। जी फरमाइए। आप मुझे हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है? जी मेरी थ्योरी ये है कि इंसान की पर्सनैलिटी पर हेरिडिटी और माहौल से ज्यादा वो मोहब्बत असरअंदाज होती है जो वो खुद करता है, वो मोहब्बत नहीं जो उससे की जाती है। दूसरे, गौर से सुनो कि हमारे जीन्स में ये बात तय होती है कि हमारा रंग, कद, बालों की रंगत कैसी होगी, हमारी तबा, हमारी जहानत कैसी होगी। इस तरह मेरी थ्योरी ये है कि मोहब्बत की सलाहियत भी हमें हमारे बाप दादा की रूह से, उनकी साइकी से, उनके नफस से विरसे में मिलती है। मैं अपनी कोशिश के बावजूद महिवाल, मजनू,
अवैस करनी या मंसूर नहीं बन सका, नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी साइकी में मोहब्बत करने की सलाहियत जो है वो पहले से फिक्स हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। मैं अपने पोटेंशियल और अपनी इस्तात से ज्यादा कभी मोहब्बत नहीं करूंगा। मेरे नफस में हलाकू और चंगेज के असरात ज्यादा है। इस पोटेंशियल को हमारी जबान में तौफीक कहते हैं, लेकिन किसी किसी इंसान को मोहब्बत करने की तौफीक ही नहीं होती। चुनाचे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट और तौफीक, मैंने अपनी जिंदगी के 3 मुआशरे तुम्हें बताए हैं। सब खाम थे, इसलिए मैं सूफी बन सका, न सियासतदान, न नामवर आर्टिस्ट बन सका, न नामवर शराब कशीद करने वाला कशीदिया। शदीद वाकयात और हादिसात का असर मेरी पर्सनैलिटी पर होता था, लेकिन आरजी, क्योंकि मेरी मोहब्बत गहरी नहीं होती थी। याद रखो कि जो लोग शिद्दत से चाहते हैं उनमें गहरी तब्दीली रूनुमा होने लगती है। उनकी पर्सनैलिटी पर मोहब्बत अपनी छाप ऐसे छोड़ देती है जैसे थॉरोब्रेड घोड़े की रान पर उसके मालिक का नाम। तुम सब ने भाई, लेकिन चूंकि मेरी साइकी में, मेरे नफस में मोहब्बत करने की सलाहियत कम है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं सिर्फ दूसरे दर्जे का ही प्रोफेसर बन सका। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं जानता हूं बॉयज एंड गर्ल्स कि मैं सुकरात जैसा प्रोफेसर नहीं हूं। जब उस पर चार्ज लगा था कि वो नौजवानों के जहन खराब करता है, उन्हें बेरौह करता है, तो उसे जहर का प्याला पीना पड़ा था। A1 प्रोफेसर मेरे बच्चों सुकरात जैसा होता है। मैं तो अमूमन सीनियरिटी लिस्ट देखा करता हूं कि अब मुझसे ऊपर कितने रह गए, मैं नेक्स्ट ग्रेड से कितना दूर हूं। याद रखना मेरे बच्चों, जिनकी पर्सनैलिटी छोटी रह जाती है उनकी साइकी में, उनकी रूह में मोहब्बत करने की सलाहियत कम होती है। बड़े बड़े आशिक बड़ी बड़ी औगट घाटियों से गुजर जाते हैं, ठंडी हवा की तरह, मंसूर की तरह, शाह हुसैन की तरह, सरमद की तरह। मोहब्बत करने की कोशिश में रहो मेरे बच्चे, मोहब्बत करने की कोशिश में रहो। मोहब्बत जो है उसे पाने की कोशिश जालिम है, खूंखार है। मोहब्बत मिलेगी तो फिरौन की पर्सनैलिटी होगी। अगर मोहब्बत करोगे तो अवैस करने का रूप धारने लगोगे। पुरसुकून जाज़िब ठंडी शबनम। हाँ, बाय द वे, तुम लोगों को कौन सी पर्सनैलिटी पसंद है? जो भी कुछ है मोहब्बत का है ना है, जो भी कुछ है मोहब्बत का है ना है, जो भी कुछ है तेरे मेरे अबद का किनारा है ये, किसका है ये प्यार भाव जो भी कुछ है मोहब्बत का है ना, जो भी कुछ है।
वो दम जिस घड़ी खुद की पंखड़ी उसका आईना जगमगाने लगा, एक भमरा वहीं देख कर फिर कहीं